I love the part of the fun. Like some things were very nice, and the fun thing was what I had always been doing for years together. So that when you blow up that amount, you feel that satisfaction. Ki, you could spend to your heart's content whatever that you had put away, and that was really nice. It gives you such a good feeling. So that was a good point. I really like that. And even the 5-star, to experience it, what it is to have, sorry, I'm in such a wrong place right now, this thing, experience the high life. So actually, we started this because we also came from the service background. So it was like you rise up the ladder and things like this. Right. But I used to also put away, from when I was working little. So at least bachon ke birthdays pe when they were young, this was an experience, to take them to a 5-star so that they, see what life is and, try to reach that goal. So I think, yeah, it was really nice. I really enjoyed it yesterday. Thank you so much. It was, I'll share something because I came, my father lost his parents very early, rather his mother. So, he was always this person who would put away every rupee, like when you were saying, ask for 10 and you'll get 3 or 4. So after I grew up and I was doing my MBA, I was working under one of my uncles only. And he was the one who today, you read them. So he was the one when I was working under him and training under him. He always said this, that, if you want something for 100 rupees, rather than saving 10, 10, 10, aim to increase your worth by 100. So you can buy that thing 100 times rather than stepping down from what you're currently doing. Correct. So that was what, teaches you abundance, because that's where you want to move a step up to increase your wealth, to, increase your lifestyle thing. So yesterday it was for me, it was like a heart connect to what you were teaching, because it was exactly what he had told me so many years ago what did I train? I trained in 1985, 86. So I really loved it. I mean, it was like what you had learned or heard being put in front of you so beautifully. I really loved it. I really loved it. Thank you guys. It was really nice. It was really nice. It's good that you liked it. Thank you so much. We are glad that you liked it. Thank you, dear. Yeah. And now I'll get off my camera because I'm going to feed. So I'll catch you guys once I finish. Sure, definitely. Okay, take care. Thank you. You too. डिस्कस करने वाले हैं हम सब में ना इन्वेस्टमेंट करते समय, सेव करते समय एक मनी की पर्सनालिटी हम सब में छुपी हुई है. हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी के जो डिसीजंस होते हैं वो इसी पर्सनालिटी के ऊपर लेते हैं. एंड हमारे ऑल्सो रिलेशनशिप विथ माय पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ, या फिर कौन से स्कूल में मैं जा रहा हूँ, कौन सा जॉब में चूज कर रहा हूँ, मैं कौन सी ड्रेस खरीद रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स में कौन से रहना, बेसिकली मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन मनी. तो हमें ये जानने की बहुत जरूरत है कि मैं कौन सी कैटेगरी की पर्सनालिटी में बेसिकली आता हूँ. So the first type of personality is about Amazir की personality, AMASSER, Amazir type की personality. Now, ये type की personality के लोग basically every month. Sorry, Yashish ji, I just missed that word. I mean, there was a little. Amazir. Okay. AMASSER, Amazir. Yes. SSER. Yes. Amazir type की personality. Now, Amazir टाइप की पर्सनालिटी ये रहती है जहाँ पे हम मनी अर्न भी करते हैं, मतलब मनी सेव भी करते हैं एंड मनी स्पेंड करते हैं एवरी मंथ. ये टाइप की पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा बिल्डिंग वेल्थ एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा हमेशा ये ट्रस्ट करते हैं ये चीज़ पे. सो होता क्या है, ये टाइप की पर्सनालिटी के लोग अगर सेव नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो इन लोगों को बहुत एम्प्टी जैसा फील होगा, वो लाइफ अच्छी तरह से जीते नहीं है ऐसे इन लोगों को लगे. दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज इक्वेट मनी विथ खुद की सेल्फ पावर एंड सेल्फ वर्थ को हमेशा कंपेयर करेंगे. ऑल्सो अगर इनके पास पैसा नहीं होता है, पॉवर्टी माइंडसेट में अगर ये चले जाते हैं, स्कैरसिटी माइंडसेट में चले जाते हैं, तो ये बहुत डिप्रेस जैसा फील करते हैं एंड उनको बहुत फेल्यूर जैसा फील होता है. नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस पर्सनालिटी इज दैट ये लोग खुद के खुद डिसीजन फाइनेंशियल्स लेते हैं. सो
क्वाइट डिफिकल्ट होता है, कुछ चीजें इन्होंने रॉन्ग की तो ये लोग ना गिव अप नहीं करते, सोचते हैं। लाइक प्रोफेशनल आप देखोगे ना तो मोस्टली ये टाइप की पर्सनालिटी के रहते हैं। फाइनेंशियल प्लानर्स बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, तो ये टाइप की पर्सनालिटी के रहते हैं। ऑल्सो अगर ऐसी पर्सनालिटी हम में कहीं छुपी हुई है तो हम क्या करेंगे पता है, अगर मुझे ये अगर वरी लगता है हमेशा फाइनेंस के डिसीजन लेना, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट करूंगा। लेकिन जब भी मैं उसको अपॉइंट करूंगा ना, विद इन अ मंथ ना मैं उसका दिमाग खाना शुरू हो जाऊंगा, भाई तू मुझे रिटर्न कब देगा, रिटर्न कब देगा, हाई रेट ऑफ रिटर्न मुझे चाहिए ही चाहिए, तू कुछ भी कर। तो वरी जितनी इन लोगों के पास होती है उतना इन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन्वेस्टमेंट के लेने का जरिया भी होता है, एंड खुद को बहुत रिच फील करते हैं हमेशा ये लोग। सो मेरा ये मानना हमेशा है कि हम सब में कहीं ना थोड़ी सी ये पर्सनालिटी होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज अ लिटिल बिट बैलेंस टाइप की पर्सनालिटी, क्योंकि मैं सेव भी कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ एंड मैं अर्न भी मनी कर रहा हूँ। सो ये अगर लोग वरी करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा, देन एडवाइस इन लोगों के लिए ये है कि ये हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर को उसके पास जाके अपने डिस्कस करे अपने प्रॉब्लम्स, एंड बेसिकली उसके ऊपर ट्रस्ट करे। खुद के डिसीजन तो खुद ले, लेकिन उसके साथ भी जाके उसके पास डिस्कस करे। सो यस, दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी के लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, सेवरल वीक्स उसमें अपना पूरा दिमाग चलाते हैं। मैं ज्यादा एनालाइज करता हूँ, किसी स्टॉक में किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस हो जाता हूँ। समझ में आई ये टाइप की पर्सनालिटी कैसी है? नाउ मूविंग अहेड, सेकेंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज अबाउट अवॉइडर टाइप की पर्सनालिटी। ओके, अवॉइडर टाइप की पर्सनालिटी कैसी होती है? दैट आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू द मनी। मैं मनी के तरफ अटेंशन नहीं दे रहा हूँ। मनी ये चीज मेरे लिए इट्स अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, सो दैट आई एम अवॉइडिंग लुकिंग एट इट। मेरे लिए मनी जैसा चीज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो मैं इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नाउ दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी के पीपल दे हैव हार्ड टाइम बैलेंसिंग देयर स्टेटमेंट्स, लाइक उनके जो बैंक स्टेटमेंट होते हैं वो बैलेंस करने में, उनको देखने में बिल्स कहाँ आ रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग मेरा कितना आ रहा है, इनकम कितना है, मेरा एक्सपेंसेस कितना है, इसको देखने में इन लोगों को तकलीफ होती है, ध्यान ही नहीं देते, अवॉइड ही करते। नाउ और एक चीज ये अवॉइड करते हैं क्या, कि वो टैक्स पे ना रेगुलरली टाइम पे नहीं करते। जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक मैं नहीं करूंगा। नाउ दिस टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो अवॉइड मेकिंग अ बजट। जो बजट बनाना रहता है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने रहते हैं ना, उस चीज को मैं हमेशा अवॉइड करूंगा। ऑल्सो ये टाइप ऑफ पर्सनालिटी के लोग हमको इतना मनी की तरफ ध्यान नहीं देते ना, तो वो जो मैंने दूसरे को कितना दिया है मनी, स्पेंड कितना किया है, सेव कितना किया है, इसका इनके पास कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छे से नहीं रहता। मतलब हाँ, ऊपर नीचे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत डीपली जाके उस चीज को एनालाइज नहीं करूंगा कि मेरा लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, मैं इग्नोर करूंगा मोस्टली। एंड बेसिकली होता है ऐसे कि इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्लोज लुक करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या इनकमिंग होता है, क्या आउटगोइंग आता है। एवरी मंथ मुझे मेरा बैंक स्टेटमेंट देखना चाहिए कि मैं अननेसेसरीली कोई सब्सक्रिप्शंस नहीं लिया है ना मैंने। तो ऐसी चीजों पे उनको ध्यान मतलब ज्यादा देखना चाहिए। मैं मेरे फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे दूंगा, मैं अवॉइड नहीं करूंगा, क्योंकि कमाते हम हैं तो मुझे मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस पता होनी चाहिए क्या है कर। The third type of personality is about hoarder type की personality. होर्डर टाइप की पर्सनालिटी, होर्डर टाइप की पर्सनालिटी अगर मेरी है तो मैं हमेशा वरी में रहूंगा, मैं हमेशा स्कैरसिटी माइंड में रहूंगा रादर देन अबंडेंस में रहने के या फिर प्रोडक्शन के रहने के बजाय। मुझे मेरे फाइनेंशियल गोल को प्रायोरिटी देना डेफिनेटली अच्छा लगता है अगर मैं इस टाइप की पर्सनालिटी हूँ, रादर ना होल्डर टाइप के पर्सनालिटी के लोगों को। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये लोग ना बजट बहुत अच्छे से बनाते हैं, एंड बजट बनाने से पहले उसका जो प्रोसेस रहता है ना, बहुत एंजॉय करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है क्या इनकमिंग है, क्या आउटगोइंग है, छोटी 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 चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देंगे, बहुत एनालिसिस करेंगे। नाउ अभी दूसरी एक चीज होती है होल्डर टाइप की पर्सनालिटी की, क्या आई फाइंड वेरी हार्ड टाइम
कि क्या मुझे हार्ड टाइम क्या आता है कि मैं मेरे फैमिली के साथ या फिर मैं मेरे लव्ड वंस के लिए, मेरे खुद के लिए ना मैं स्पेंडिंग नहीं कर पाता. व्हाई? बिकॉज आई एम माइजर. मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए कोई लग्जरी आइटम्स या फिर उसके लिए कुछ खरीद ही नहीं करूंगा अगर मैं होर्डर टाइप की पर्सनालिटी का हूँ. इनफैक्ट ना मैं आपको बताऊँ, दोस्तों के साथ इनके जब कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, एंड ऐसा नहीं है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, डेफिनेटली नॉट. लेकिन अगर पैसा भी है ना तो भी ना ये ना अपने को अच्छे से एडवाइस देंगे, अरे तू वेकेशन के लिए मत जा, क्यों जा रहा है, क्यों पैसा खर्चा कर रहा है, मत कर, क्यों इतने ये कर रहा है. तो ये टाइप की पर्सनालिटी के लोग पैसा होने के बाद भी नहीं करते कुछ ज्यादा तरह से स्पेंडिंग, अवॉइड करते. नाउ दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी की कंसर्न हमेशा ये रहती है दैट दे टेंड टू बी कंसर्न नॉट विद अ लिक्विडिटी बट विद अ फ्यूचर सिक्योरिटी इन स्पेशली रिटायरमेंट की तरफ ना इनका बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है कि मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे सेव करूँ. मतलब जो नॉर्मल लोग रिटायरमेंट की तरफ जितना ध्यान देते हैं ना, उससे कई ज्यादा ना ये लोगों का ध्यान रहता है रिटायरमेंट के लिए मैं कितना मनी सेव करूंगा. There is a one thing also I wanted to discuss with you that कि इसकी पर्सनैलिटी में ना एक्सट्रीम टाइप के भी होल्डर्स रहते हैं. सो ये लोग क्या करेंगे, ये अपना जो मनी रहेगा वो सिर्फ बैंक में ही इन्वेस्ट करेंगे रादर देन पुटिंग इनटू दैट मनी इनटू कंजर्वेटिव इन्वेस्ट लाइक मनी मार्केट में या फिर बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में. ये तरह की पर्सनैलिटी के लोग ना कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते. उनको ऐसा लगता है अरे मैं करूंगा सब, मतलब नहीं करना ही नहीं है, इनको ध्यान ही नहीं देना है उनको. तो माइजर टाइप की पर्सनालिटी के ये लोग होते हैं, उसको होल्डर्स. तो आपने अपने आजू बाजू में ऐसी टाइप की पर्सनालिटीज कहीं देखी है, या फिर आप खुद के ऊपर भी ध्यान देंगे तो समवॉट मैं ऐसे टाइप की पर्सनालिटी में हूँ करके ऐसा मुझे लगे, हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेटिव. सो ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? कोई इंसिडेंट कोई शेयर करना चाहेगा? एक्चुअली ये थोड़ा लेवल ऑफ एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है. मतलब कई लोग को ऐसा रहता है कि ये सब चीज मार्केट वगैरह सब इसमें पैसे डूबते ही है, कभी सुना रहेगा ना तो यही सोच के इन्वेस्ट करते ही नहीं है. उनको आप कितना भी बोलोगे तो कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे. उनके लिए एफडी से ज्यादा सिक्योर कुछ भी नहीं है. और अभी तो kind of a personality. यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन. ओके, ठीक है. इसमें I इट्स अ don't लेवल ऑफ invest into एक्सपोजर. market. अभी मेरा ऐसा एक ग्रुप रहेगा जहां पर इन्वेस्ट करते हैं सब, तो थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट जगेगा. इनिशियली नहीं रहेगा लेकिन ग्रेजुअली मुझे इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ चलो इनका भी पैसा, मतलब मैं सेम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करके अगर मेरा कम आ रहा है और उनका मेरे से डबल हो रहा है थोड़े टाइम में, मतलब 2-3 साल या 4 साल में, तो मैं सोचूंगा ना कि एटलीस्ट लेट मी गिव इट अ ट्राई. लेकिन एक माइंडसेट अगर बना दिया तो नहीं होगा. अभी मेरे अंकल की बात करूं, उनके पास करोड़ ऑफ रुपीज है. वो मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. उनको मैंने 2-3 बार बताया कि आप ऐसा थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, सब सुना, 2-4-5 दिन पूरा प्लानिंग भी किया कि ये करेंगे. फिर आके बोलते अरे कल मार्केट एकदम डाउन गया तो भी मेरा पैसा. फिर मैं बोला आपका पैसा ऐसी जगह पे डाल ही नहीं रहे. मैं आपको ऐसा फंड लेने के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ. जो फंड में आपका लॉन्ग रन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है वैसा वाला ही आप कीजिए. तो फिर उनका माइंड वापस चेंज हो, बोलते हैं नहीं है उससे अच्छा है. उन्होंने फाइंड आउट किया बाद में, तो मैंने भी उनको सजेस्ट किया कि चलो एक काम करो आप HDFC लिमिटेड का करो, एटलीस्ट आपको बैंक से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, आपको 1.50% या 1% थोड़ा ज्यादा मिलेगा. तो देन ही स्टार्टेड विद दैट. लेकिन मुझे उनको FD के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता. So there are these kind of personalities existing. ऐसा है. Yeah, I'm one of them. Because I learned it from my parents. So, हाँ, as so simple थोड़ा as that. हाँ, learn from parents. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, that's why I wanted to learn what is there in the market. So कहाँ से learn करना I don't know, and I don't have much interest into When you financial invest, stuff, so. Rashmi, automatically you will know. जब तू इन्वेस्ट I करेगी don't know. शेयर मार्केट में खुद सीख जाएगी. तिवारी जी आपका आवाज नहीं आ And रहा it है. is the best teacher, Rashmi. वही है कि तिवारी किसी जी आप और म्यूट पे हो. I'm saying you should lose some money in the market, then you learn, start learning. Uh,
For me, ignorance is a bliss. No, if you actually invest wisely, na, it will take Yeah. you a long way. Mm-hmm. Absolutely. When I was out of job and all that for more than 6 years, etc., I just realized how long it took me to really, reap on the benefits of my investments that I've wisely done during my working days. It takes time Oh, to okay. learn things, and SIPs are a better way, I think. हाँ, Common SIP option is always better. I do have SIPs. It's not me. That's It's my good. husband who does into that. I don't. conservative fellow. Conservative fellow. Yeah. Saving. यशरी जी, हाँ बोलिए ना, बोलिए। हमारे एक मित्र हैं, तो वो क्या है, अभी काफी दिनों बाद, लगभग 10 से 15 इयर्स ओल्ड समथिंग, उसके बाद बात हुई, तो अभी मैंने कहा चलो अभी क्या हो रहा है दुबे जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सब ठीक है, अच्छा है। राजीव खुशी बताया। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई क्या कर रहे हो? बोले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते। तो हमने कहा चलो और कुछ दूसरे तरफ भी इन्वेस्ट करके देखो, थोड़ा सा मैं आता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो बहुत बढ़िया फ्यूचर है इसमें। अरे बोले नहीं क्या करेंगे सर, मैं तो उसी में बहुत खुश हूँ, बढ़िया, जरूरत नहीं दूसरे की। तो वो तो जिस तरह का फील्ड रहता है, फिर आदमी सेकंड में टाइप में जाना नहीं चाहता है, रहता ही ऐसा। बाकी नेटवर्क मार्केट का मुझे लगा कि अच्छा क्रेज अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, कई सारी चीजों में, हेल्थ में भी बहुत सारी चीजों में आ रहा है। तो मतलब मुझे भी लगा कि फ्यूचर बेटर फ्यूचर है। जी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, उन पैरामीटर्स जी को जी, जब तक आप हाँ जज नहीं बिल्कुल। करते हैं, और किसी का इंटरेस्ट हो तो देन यू शेयर इट आफ्टर, अपार्ट फ्रॉम दिस। हाँ वो तो सही बात, बिल्कुल सही है। जी जी जी, इंडीड इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उसके पैरामीटर्स अलग हैं। जब तक आप उन पैरामीटर्स को चेक नहीं जी करेंगे, जी जी, वो तो रहते हैं। जी तो जी उसका बिल्कुल क्या है बिल्कुल। कि हम स्टार्टिंग ही किसी गलत प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं और फिर उसका ब्लेम करते रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग किधर है। इट इज नॉट सो। हाँ वो होता है जी। एक साधारण आदमी के लिए कई सारी कंपनियां भी फॉलो करती हैं, अभी सब्जेक्ट कई सारी कंपनियां भी ऐसी रहती हैं कि पहले जी अपने जी एक्चुअली जी। प्रॉब्लम क्या है, तो वो फील्ड जैसे बनाते हैं। अपन अच्छा आप बोलिए पहले। अभी वो टॉपिक चलेगा। चलो हम करते हैं डिस्कशन, बाद में हम अपनी back to our classes. Let's चल back ठीक to है, our classes. अभी पहले सेशन अच्छा, हो आप गया, उसके बोलिए। बाद बात करेंगे, है ना? जी जी These जी are जी, हाँ आप talks we बोलिए। will do post our sessions. हाँ, Yes. पोस्ट आवर सेशन, Yes, we can all right. continue. हाँ आप लोग चलो। जी। Thank तो you. नेक्स्ट टाइप की पर्सनालिटी है ये कि स्पेंडर टाइप की पर्सनालिटी। स्पेंडर टाइप की पर्सनालिटी इज काइंड ऑफ दैट आप हमेशा स्पेंडिंग ही करोगे, एंड ये टाइप के पर्सनालिटी के लोग हमेशा डेप्थ में चले जाते हैं, लाइबिलिटी में वेरी इजीली चले जाते हैं। इनके पास 7-8 क्रेडिट कार्ड रहेंगे, 8-10 लोन्स वगैरह रहेंगे। एंड बिग स्पेंडर्स टाइप की जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनको इसमें भी एक सब कैटेगरी है स्पेंडर्स में, बिग स्पेंडर्स करके। वो नाइस कार्स, न्यू गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, ऐसे वाले लेंगे। अगेन शॉपिंग करते समय कुछ बार्गेनिंग वगैरह कभी नहीं करेगी। बड़े बड़ा ब्यूटीफुल होम, देन नए नए गैजेट्स के मोबाइल, टेलीविजन वगैरह जो होता है। तो ऐसी चीजों पे ये लोग ज्यादा, जो बिग स्पेंडर्स वाले लोग होते हैं ना, ये करते हैं। एंड देन इन लोगों के लिए बहुत हार्ड टाइम होता है सेविंग करना, अपनी फाइनेंशियल गोल्स को देखना। तो दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज अबव। इनको समझ में ही नहीं आता कि हाँ भाई मैं डेब में चला गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सेविंग्स करनी चाहिए, नहीं, इनका ध्यान ही नहीं रहता है। तो ऐसे टाइप के पर्सनालिटी के लोगों को कुछ भी मतलब स्पेंड करते समय खुद को एक क्वेश्चन हमेशा पूछना चाहिए कि कहाँ पे मेरी स्पेंडिंग जा रही है, कहाँ, या दूसरी चीज मैं सेविंग अकाउंट में कितना मनी सेव कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे सेव करना चाहिए, क्या मुझे मेरे फाइनेंशियल प्लानर के साथ बात करना चाहिए, एंड स्पेंडिंग करते समय मुझे किस तरह का फील होता है, मुझे अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, या फिर वो फीलिंग उसी टाइम के लिए ही पर्टिकुलर रहती है, या फिर मैं स्पेंड करते ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। ओके, द अनदर टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज अबाउट, इसमें ही रहता है, मैं इसकी सब कैटेगरीज बता रही हूँ। सोशल वैल्यू स्पेंडर। द सोशल वैल्यू टाइप की स्पेंडर्स वो टाइप के होते हैं जहाँ पे उनको ऐसा लगता है दैट शॉपिंग मेक्स मी हैप्पी, आई फ्रीक्वेंटली बाय प्रेजेंट्स फॉर माय लव्ड वंस, और अगर मैं ये स्पेंडिंग करता हूँ देन आई एम सोशली एक्सेप्टेड, आई एम मोर एक्सेप्टेड इन द ग्रुप। मैं उस
ग्रुप में सबसे ज्यादा मेरी दोस्त लोग मुझे देखेंगे, मेरी पूरी स्टेटस को देखेंगे, मैं ग्रुप में जल्द से जल्द एक्सेप्ट हो जाऊंगा। मैं जब बूस्ट मतलब मैं जब परचेस करता हूँ ना, मुझे बहुत बड़ी बूस्ट मिलती है, मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर स्पेंड करना। सो लार्ज बहुत परचेसिंग इनकी रहती है, जैसे कि मैंने बताया कार्स वगैरह खरीदेंगी, बहुत ब्रांडेड क्लोथ्स रहेंगे, तो इस टाइप के सोशल वैल्यू स्पेंडर्स भी रहते हैं। नाउ देयर इज ऑल्सो अनदर कैटेगरी है, उसको बोलते हैं कैश स्प्लैशर करके है। स्पेंडर की अनदर कैटेगरी है, उसको बोलते हैं कैश स्प्लैशर। नाउ इन लोगों का ऐसा होता है ना, ये लोग दिखावे पे बहुत ज्यादा जाते हैं। तो अगर रेस्टोरेंट में आपके अगर दोस्त के साथ या कोई फैमिली मेंबर के साथ वो गए हैं ना, तो सबसे पहला ये लोगों का बोलना ये रहता है कि जब खाना वगैरह होगा उसका बिल मैं पे करूंगा, तुम नहीं करना। एवरीथिंग इज अबाउट देम, उनके ऊपर ही हमेशा सबका ध्यान जाना चाहिए। तो जो भी ये लोग स्पेंडिंग करेंगे, मैं खुद को बहुत जेनरस फील करता हूँ एंड मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए स्पेंड करना मनी। तो अगर मुझे पार्टी में जा रहा हूँ या फिर मैं किसी रिश्ते में फैमिली फंक्शंस में जा रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाना हूँ, तो दिखना चाहिए आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मुझे अच्छा लगता है, लोग मुझे ही देखने चाहिए, बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं इनका जाना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शंस में जाते हैं ना, तो ये लोगों की चैरिटी भी बहुत रहती, चेकबुक लेके ही जाएंगे ये लोग। तो कैश स्प्लैशर्स टाइप की पर्सनालिटी ऐसे होती है। अगेन क्लब की मेंबरशिप होगी इनके पास, एक्सपेंसिव क्लब की मेंबरशिप होगी, जो विजिबल आइटम्स होते हैं, जो इजीली दिखते हैं ना, फटाक से खरीदेंगे एंड बड़ा चढ़ा के भी सबको बोलेंगे हाँ भाई मैंने ये किया है, मेरी जिम की मतलब जो भी है मेरी मेंबरशिप है, क्लब मेंबरशिप है, एक्सपेंसिव चीजें मेरे पास है, एंड दिखाएंगे ऐसे सबको, स्टेटस वगैरह डालेंगे। सो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। इनका डिजायर भी बहुत रहता है क्या कि इट इज मोटिवेटेड बाय रिजल्ट टू एडमायर। नाउ इनके पास बहुत कैश है, तो इनको क्या लगता है पता है, लोग ना मुझे बहुत प्यार करें एंड मैं 4 लोगों में बहुत पॉपुलर हो जाऊं। तो कैश स्प्लैशर की पर्सनालिटी स्पेंडर की कैटेगरी में आती है, सोशल वैल्यू स्पेंडर, एंड देन देयर इज अनदर कैटेगरी व्हिच इज अ कैश स्प्लैशर टाइप की पर्सनालिटी होगी। दो दे आर द स्पेंडर। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेवर्स की पर्सनालिटी। नाउ सेवर्स की पर्सनालिटी, एवरीबडी नोज कि हम हमेशा हमारे फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मुझे पता है मुझे किस तरह से बजट बनाना है, आई ऑल्सो एंजॉय दैट प्रोसेस। स्पेंडर से एग्जैक्टली अपोजिट ही रहेंगे। तो एक छोटी छोटी चीजें भी में होती है, ये सेविंग जो सेवर्स होते हैं उनकी, रूम से निकलने के बाद लाइट्स बंद करना, फ्रिज का दरवाजा ओपन होता है फटाक से बंद करना, क्विकली मतलब होता है ना कि शॉपिंग में उतनी ही करूंगा जितने मैंने लिस्ट बना के रखी है, उतनी मैं शॉपिंग करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। सो मेरा ये हमेशा मानना रहता है कि मतलब उस पर्सनालिटी का ये हमेशा मानना, बिकॉज आई एम अ सेवर काइंड ऑफ पर्सनालिटी। सो मेरा हमेशा यही मानना रहता कि छोटी छोटी चीजों में मैं अपॉर्चुनिटीज हमेशा ढूंढती रहती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे सेविंग करती हूँ, मेरे पास और कितनी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये लाइफ के लोग हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक रहते हैं कि वो देखते हैं कि हाँ मुझे अगर ये फंड में, ये स्कीम में अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेविंग करने की, देन डेफिनेटली मैं अपना परसेंटेज जो है वो बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरा फोकस पूरा सेविंग के ही तरफ रहेगा। तो सेम स्पेंडर्स की एग्जैक्टली अपोजिट पर्सनालिटी रहती है, एंजॉय नहीं करते लेकिन ये टाइप की पर्सनालिटी के लोग। सो जो परसेंटेज रहता है अगर बहुत हाई रहा ना मेरा सेविंग्स का तरफ के, तो मैं कभी स्पेंड ही नहीं कर पाऊंगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा लाइफ में जो चीजें मुझे करनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा सेविंग्स की पर्सनालिटी भी किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, राइट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज अबाउट, या देयर आर द पीपल, ऐसी टाइप की भी पर्सनालिटी है अभी भी जो मनी मॉन्क बोलते हैं। मनी मॉन्क टाइप की पर्सनालिटी इनकी होती है, जो हमेशा मनी को डर्टी बोलते हैं, मनी इज अ बैड, तो मनी इज अ रूट ऑफ इविल। अगर मेरे पास, मेरे पूर्वजों से मेरे पास अगर पैसा आया है, बहुत ज्यादा मेरे पास अगर पैसा आता है, फिर भी मैं उस चीज को ना एंग्शियस थॉट्स आएंगे, भाई क्यों दिया है मुझे ये मनी। तो मेरा पॉजिटिव अप्रोच कभी इसके लिए नहीं रहेगा। मैं ऐसा सोचूंगा, अगर मेरी पर्सनालिटी मनी टाइप की है तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत ग्रीडी फील कर रहा हूँ, ग्रीडी हूँ मैं मनी के लिए। तो अगर मेरे पास प्रॉपर्टी भी है ना, तो ये टाइप के पर्सनालिटी के लोग सेल करने में जाते हैं। अगेन एक्सट्रीम केसेस क्या रहती है पता है, मनी मॉन्क की टाइप की पर्सनालिटी, ये लोग ना ऑल्सो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। व्हाई? बिकॉज दैट इन्वेस्टमेंट गिव मी अ लॉट ऑफ रिटर्न्स।
तो मैं क्यों करूँ ऐसी चीजों में इन्वेस्ट? मेरा मोस्टली ध्यान मेरा स्पिरिचुअलिटी का रहेगा, तो मैं नहीं देखूंगी मनी की तरफ। एक तो मुझे वो बैड लगती है, नहीं चाहिए, मुझे ग्रिडी नहीं होना है, जितना है मेरे पास बस उतना ही टाइप का है। तो यस, ऐसी भी टाइप की एक पर्सनालिटी है ना। मेरा क्वेश्चन सबसे ये है कि आप इसमें से ग्रुप में सबकी कौन सी पर्सनालिटी है, या आप सबसे पहले फाइंड आउट करो। दूसरी चीज और एक में आपको अभी करना है, आपको ये मनी टास्क, देखिए हर कोई पर्सनालिटी अच्छी या बहुत बुरी नहीं रहती। जैसे मैंने कहा कि सेवर टाइप्स की पर्सनालिटी के भी कुछ नुक्स होते हैं, कुछ प्रोस कॉन्स रहते हैं, अच्छी भी चीजें बुरी भी चीजें। सो आपको फाइंड आउट करना है सबको कि ऐसी 5 कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं। से फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनालिटी की सेविंग की है, देन आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द 5 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट अ सेविंग की पर्सनालिटी and what are the 5 negative things about the saving की personality. This is your first task which you have to do. अभी करना है हमें, 5 चीजें अभी ढूंढनी है कि क्या है एक्चुअली पॉजिटिव चीजें, भले वो अमेजर हो, स्पेंडर हो, सेवर हो, कैश स्प्लैशर हो, मनी मॉन्क हो। तो 5 टाइप के ऐसे पॉजिटिव चीजें आपको लिखनी है एंड 5 निगेटिव चीजें आपको लिखनी है। I belong to the amassive personality. I don't see the negatives there. That is my problem. क्या करूं? मैम देयर इज ए वन थिंग, एक स्कैरसिटी वाला अबंडेंस रहता है ना अमेजर टाइप की पर्सनालिटी का, कि जब मेरे पास नहीं पैसा होता है ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन जैसा फील करती हूँ। Absolutely. पर्स में जब तक 10,000 नहीं होगा तब तक फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ मैम, तो वो तो है ना मैम वीकनेस। Okay. But you said 5. You said 5. मैं 5 कहाँ से लाऊं सोच रही हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट के बैच को 10 दिया था, देन आई सेड लाइक सबको 10 नहीं आ रहे तो लेट्स स्टिक टू 5, देखते हैं सबको अच्छी लगती है अपनी अपनी पर्सनालिटी, क्या मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो दूसरा टास्क भी मैं दूंगी इसके बाद। तो मैम एक दो भी आएगी तो चलेगा, लेकिन ठीक है देखिए। Yashashree, but people can also belong to 2 different personalities. Like people Yes. can be saver as well as they can be amazer Yes. as well. यस, So बट in लेकिन that रश्मि case, तेरी डोमिनेंट पर्सनालिटी कौन सी है मनी की तरफ? तो तूने अभी अभी होल्डर कहा ना, फटाक से जब डिस्कशन चल रहा था अपने ग्रुप में, तो तूने कहा अरे आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, मैं जहाँ पे नहीं करूंगी, रिस्क नहीं लेने की सोचूंगी। तो तेरी जो डोमिनेंट पर्सनालिटी, आंख बंद करके सोच, सबसे पहले क्या आता है तेरे दिमाग में, तेरी कौन सी पर्सनालिटी है? savings. हाँ, Anyway. हाँ, Yeah. Okay. So what is the dominant? We have to write 5 things Yes. about that. So एटलीस्ट 5 नहीं आते तो कम से कम 3 तो लिखो, चलेगा? all right. यशस्वी, ये मेरा फर्स्ट वाला ही है, अमेजर ही है, बट देन फ्रस्ट्रेशन ऐसा कुछ होता नहीं है मुझे। क्योंकि अबंडेंस रहता है तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है मुझे, ऐसा कभी फील ही नहीं होता है। नहीं है तो ठीक है, हमको और काम करना है, ये सोचता हूँ मैं कभी भी। तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट यस, आई बिलीव इन स्पेंडिंग एंड सेविंग बोथ। तो बैलेंस पर्सनालिटी यू कैन से। तो नेगेटिव में क्या लिखूं, मतलब नॉट गेटिंग, लाइक नेगेटिव में क्या लिख सकता हूँ? Yes, it is a challenging task, I know. Yes, मैं yes. बताती हूँ, हाँ, आप सोचो। हाँ, नेगेटिव में, हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ बाद में, दिन आप सोचो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक। यशस्वी, आप प्लीज मेरी पर्सनालिटी बताओ कि मेरे पास खूब पैसा आता है एंड देन मुझे, मतलब मैं खर्चा करती हूँ, मतलब दिमाग से करती हूँ, लेकिन बट आई एम अ स्पेंडथ्रिफ्ट, आई एम नॉट अ ओवर स्पेंडथ्रिफ्ट। मतलब पैसा आने से ही खुजली हो जाता है एंड देन आई समवेयर आई स्पेंड द मनी। ऐसा है? हाँ, टाइप यू आर इन, आई थिंक। कौन सा? स्पेंडर टाइप। वो तो क्रेडिट कार्ड रखता है, आई नेवर कीप क्रेडिट कार्ड्स एंड मतलब मैं। अच्छा, आप मुझे नाई जी बताओ, कैसा खर्चा करती हूँ? क्या पैसा इन द सेंस क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से दिखता है पैसा, तो आपको ऐसा खुजली होती है, आपने जैसा कहा ना, तो कैसा होता है? ठीक है, हाउ फ्रीक्वेंटली यू स्पेंड? फ्रीक्वेंटली मतलब मैं जैसे ही पैसा आया, फ्रीक्वेंटली का पता नहीं है, जैसे कोई फीस आ गई मेरे पास 15-20 हजार 50 हजार,
तो वो पता नहीं चलता है वो पैसा किधर जाता है। तो अभी मैंने उसको कोरोना से मैंने ये शुरू किया कि हर चीज वैसे पे करना है, मतलब नो कैश। वो मैंने खुद ही कर लिया था, तो उससे मेरा थोड़ा सा बेटर हुआ। मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ आई गेट कैश आई बिकम अनकंफर्टेबल विद द कैश एंड हमारा शत्रु है, हाँ क्या चीज मेरे ऐसा को हमारा कहीं ना शत्रु है। हाँ मेरे को कहीं ना कहीं उसको खर्च करना है, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं में आई विल शेयर्स, आई पुट इन शेयर्स एंड पता नहीं वो Investment is गायब हो good. जाता है पैसा। Investment is good, but spending too much is a problem, I think. हाँ मतलब पैसा किधर जाता है मेरे को पता नहीं है, बट वो गायब हो जाता स्पेंडर टाइप की हो नाइट जी आप। आपके अभी तक आपने ना 10 सेंटेंस बोले, उसमें से आपके कम से कम 8 सेंटेंस इतने ही थे कि मैं खर्चा ही कर रही हूँ, मैं खर्चा ही कर रही हूँ, पता नहीं चलता है। आप आपके खुद के वर्ड्स पे ध्यान दोगी तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि आप स्पेंडर टाइप की ही हो। आपने ये नहीं कहा कि मुझे सेव करना है, मैं सेव करती हूँ, नहीं, आपने स्पेंडर स्पेंड ये वर्ड ज्यादा बोले। तो ये स्पेंडर कर लूँ ना मैं अपने, नहीं आप खुद को सोचो, मैं नहीं बता रही हूँ। नाइट जी फिर आप बोलेगी यशस्वी ने बताया, नहीं आप सोचो। आँख बंद करके आप कितना स्पेंड करती हो। अभी तो गाड़ी चला रहे हो, आँख मत बंद करो। ठीक है, ओके, लेट मी गिव अ ट्राई। Yes. Once you reach home, you can do this exercise प्लीज peacefully. नाइट जी ऐसा प्लीज मत करना। अभी मत आँख बंद करना। दूसरे को स्पेंड करना पड़ेगा। सच में बहुत स्पेंड हो जाएगा फिर। Yes. Yes, you are. हुआ सबका क्विकली? कितने हुए कि सबके 5 पॉइंट्स हुए या एक दो ही हुए? 5 हो गए। 3 पॉजिटिव 5 नहीं हुए, अभी तो नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं। नेगेटिव हो गए। ओके, मिक्स पर्सनालिटी का लग रहा था मुझे अपने लिए। आपकी कौन सी पर्सनालिटी है? मिक्स ऑफ स्पेंडर्स एंड अवॉइडर। तो मुझे ओवरऑल सबका रेट बताइए कि पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है आपकी पर्सनालिटी? करंटली अभी तो नेगेटिव दिख रहे हैं। 1 नेगेटिव, ओके। मतलब मैं एक ये देख ली। मयूर जी आपका कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव में एक ही पॉइंट है, पॉजिटिव में 3 पॉइंट तो लग रहे हैं अभी तो फिलहाल। हम एक्चुअली स्पेंडर में बोल सकते हैं, लेकिन इतना बिग स्पेंडर। मेरा तो इक्वल है। इक्वल पॉइंट्स। इक्वल। स्पेंडर में जो फर्स्ट वाला आपने जो बताया था वो कौन सा था जिसमें वो लग्जरी का बिग स्पेंडर ना? दैट इज बिग स्पेंडर। यस, बिग स्पेंडर। I got 6 points for positive, whereas for negative I got only 2 points. Okay. What about others? Anita ji, Amir ji, Geeta ma'am, Neeraj ji,
ये वाली। मैं तो पहले ही सोच लिया था कि जब ये कोर्स में आ गया तो मेरा स्पेंडिंग की पर्सनालिटी है। ये एक मिनट क्या कहा आपने, फिर से बताइए। मैं वो बीच का लेक्चर तो सुना नहीं, लेकिन अब ये जो आप लोगों का डिस्कशन सुन के मुझे लगा कि मेरी पर्सनालिटी स्पेंडिंग वाली है, क्योंकि मैं कोर्स में ज्वाइन किया हुआ तो खत्म स्पेंड कर ही दिया। वो इन्वेस्टमेंट है सर। हाँ तो गलत है ना, आप इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है ना, पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। हाँ तो वो यूज पॉजिटिव कीजिए है ना सर वर्ड। आपने 2 बार स्पेंडिंग बोला, उसके पहले 2 बार पॉजिटिव भी तो बोलना चाहिए था। वो तो पॉजिटिव है ना, ये तो इन्वेस्टमेंट है, पॉजिटिव है। ये आपने खर्चा बोला पहले। नहीं खर्चा तो है, लेकिन मैंने तो वही सुना ना सर। तो खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है सर, इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन लर्निंग। Yashasvi, the first one was Amazer, right? A-M... Amazer, yes dear. Acha, for an amasseur, you think not having money gives a sense of insecurity? हाँ एक थोड़ा सा मैडम, बहुत उज्ज्वला जी एकदम बहुत नहीं आता है, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है कि that frustration comes, but then does it lead to a sense of insecurity is what I'm asking. नहीं ना? नहीं नेवर। ये वो बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, थोड़ी सी बैलेंस टाइप की पर्सनालिटी बोलते हैं ना, इसीलिए मैं उसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी देती हूँ उस पर्सनालिटी की। तो अच्छा ये एक छोटा सा नोट है, ये पर्सनालिटी एज के हिसाब से चेंज होते रहती है क्या? एज के हिसाब से नहीं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है, आप कितना अर्न करते हो, कितना स्पेंड करते हो, एज पे भी जो एज पे भी होती है। हाँ सर होती है, ऑफ कोर्स होती है। फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अभी मैं कौन से एज की पर्सनालिटी डिफाइन करना पड़ेगा मुझे? अभी करंट? Absolutely, current वाली. हाँ करंट As of now ना, we can't think about our past and our future. We are working on our present. Yashasvi, sorry, I missed it. Was it Amazer, Z-Z-E-R or double S-E-R है? Double S-E-R. क्योंकि किसी ने सौरभ ने Yeah, मैंने Z डाल दिया इसलिए I करके। was like, okay, I'm sending some points which I have saved, so it can help others. यशस्वी मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक थोड़ा सा रिवाइज करो आपके पांचों पर्सनालिटी। बहुत होगा, अगेन आधा घंटा जाएगा। नहीं शॉर्ट में ओके, क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगी तो फिर अच्छा एक मिनट। are already there. रश्मि ने आई थिंक थोड़ा डाला है। रश्मि रश्मि ने सब डाला है। नाइट से चेक कीजिए। yes already there in the chat box. थैंक यू रश्मि। तो यस, किसी को दूसरी बात, सबको पहले बताओ अपनी अपनी पर्सनालिटी अच्छी लगती है क्या? किसी को कुछ चेंज करना है पर्सनालिटी? Yes. Acha, I am also a giver. So where do I come there? वो एक अलग है। वो स्पेंडिंग ही है ना। स्पेंडिंग में ही आएगा ना, चैरिटी में है ना वो। But मैंने बताया था ना। No, I go by my balance, but then in that I have a separate thing. I keep about 8 to 10% aside for the universal purpose. Okay. तो मैम उसमें से 20% आपका जो है ना नेचर, उसमें से 20% की 10% की पर्सनालिटी आपकी गिवर की पर्सनालिटी। एक्चुअली मैम मैं आपको बताऊं क्या, देयर आर 10-20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी। मतलब जितने इमोशंस में हम घुसेंगे ना, उसमें और ज्यादा पर्सनालिटीज है, लेकिन दीज आर सम बेसिक जो बोलते हैं ना, जो डोमिनेंट पर्सनालिटी हर किसी में रहती है, वैसी वाली है ये। तो यशस्वी मेरा ये फर्स्ट और सेकंड दोनों 50-50% है। तो क्या करूं? तो व्हाट डू आई डू? ओके, तो मैंने ये दिया था कि आपको 5 पॉजिटिव पॉइंट्स एंड 5 नेगेटिव पॉइंट्स आपको लिखने हैं आपकी पर्सनालिटी के। दोनों के बारे में लिखूं फिर मैं? ठीक है, ओके। तो अगर दूसरा एक टास्क है मनी का, इसी से रिलेटेड, अगर आपको आपकी ये पर्सनालिटी नहीं अच्छी लग रही है और आपको चेंज करना है, तो आपको लगता है कि अमाज़र टाइप की पर्सनालिटी मेरी है लेकिन मैं नहीं, या फिर मैं अवॉइडर टाइप की हूँ और मुझे चेंज करनी है मेरी पर्सनालिटी, अगर आपको मौका दिया जाए, या फिर मैं जैसी हूँ वैसी नहीं चाहती हूँ मैं मेरे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, एंड दूसरी पर्सनालिटी मुझे अच्छी लगती है, तो आपको उसके 5 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं।
अगर मैं खुद को समझती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रही हूँ और मुझे सेवर की कैटेगरी में आना है, चलो तो सेवर की कैटेगरी मुझे अच्छी लगती है, तो सेवर की कैटेगरी मुझे क्यों अच्छी लगती है उसके भी रीजंस आपको लिखने हैं, 5 एंड देन 5 नेगेटिव आल्सो। यशस्वी, व्हाट आई बिलीव इज बहुत सारे डिफरेंट है, सो हर एक पर्सनालिटी के देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, सो इट्स गुड टू हैव प्रोज फ्रॉम ऑल द पर्सनालिटीज, राइट? वो जैसे रश्मि, दैट इज योर सोच, वही मैं बोल रही हूँ, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग सोच रहती है। सेविंग ना एक जैसा नहीं होता, मतलब भले ही गूगल में या फिर हम कहीं पे भी बताए कि सेवर सेवर एंड सेवर भी हमेशा होना चाहिए। सो डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे, डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल रहा हूँ। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए पहले। डॉक्टर साहब म्यूट है। तिवारी जी बोलिए। ये एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। असल में क्या रहता है ना, मेरे साथ क्या जब भी जो रहता है, अभी जैसे कोई आप लोग विकास वाला मुझे देख, सौरभ जी से बात हुई, सौरभ जी को कैसे ऐसे करके आपको जोड़ना, तो कैसे क्या, तो फिर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अकाउंट में मुझे क्या सेव करना, तो बस कर देता हूँ। वैसे ही अभी जैसे एक और कार्यशाला भी चल रही है हमारी साथ में ही, तो उसमें ऐसे ही मतलब मेडिकल से ही संबंधित है कुछ ऐसे इस तरह का, तो उन्होंने उनसे बात हुई, पहले तो मैं नहीं जुड़ पाया, फिर आज बात हुई तो बोले सर आप शुरू करिए, तो मैंने कहा ठीक है, यस कर दिया मैंने। तो मैं नहीं देखता हूँ, ये थोड़ा सा पर्सनैलिटी है मेरी, बाकी सेवर बनना चाहता हूँ, और जैसे आ जाता है ना अधिक, तो फिर मैं नहीं देखता हूँ कि अब इसका कुछ आगे हमें साइड इफेक्ट होंगे नहीं होंगे, मैं तो कर देता हूँ, डन हो जाता है, जो कर दिया ये रहता है। तो अभी जी सोचते हैं कि थोड़ा सा मैनेजमेंट भी, मैनेजमेंट थोड़ा सा मेरा नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मैनेजमेंट थोड़ा मिसमैनेजमेंट ऐसा लगता है मुझे। तो कई बार ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट होते ही है ना, जैसे कभी आवश्यकता है तो अभी पूरा कैश नहीं है मेरे पास में, तो रहता वो मिसमैनेजमेंट तो महसूस करता हूँ मैं। तो इसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन आप लोगों की क्या रहेगी वो देखते हैं, फिर किस ग्रेड में हम आते हैं, तो अभी हम लोगों को गाइडलाइन पता नहीं कौन सी ग्रेड में आते हैं, पर ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों से कुछ ना कुछ तो जरूर आगे होने वाला है। हाँ, कुछ ना कुछ कहते हैं कि चमत्कार होने वाला है। चमत्कार तब होगा तिवारी जी आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, वो चमत्कार जैसा ही है। हम तो एक जरिया है, नजरिया आपको बदलना है। So, yes. तिवारी जी लास्ट डे तक रुकना मत, नहीं तो आप बोलेंगे मेरे को कुछ मिला नहीं। रोज लेते जाओ कुछ ना कुछ। इसमें भी बहुत कुछ लेने लायक है, कहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, थोड़ी हमारी पर्सनालिटी का जरा क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो वही सबसे काम कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा हमको, खुद को ही करना पड़ेगा, और कोई तो हमें नहीं जानता है इतना हमारे अलावा, हमको ही खुद को समझना है और डिटेल में पॉइंट्स लिखने हैं। सॉरी आपका आवाज नहीं आ रहा। तो सेकंड टास्क वही है, अगर आप बाद में भी चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है, देन आल्सो फाइंड आउट दैट 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव ट्रेट्स अबाउट दैट पर्सनालिटी। नाउ ये सब जब हमें पता चलता है मुझे मेरी पर्सनालिटी क्या है, इसके बावजूद भी मैं कोई साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में मैं फंस जाती हूँ, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मैं ठीक तरह से ले नहीं पाती। नाउ जब मैंने शेयर मार्केट का स्टडी करना, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तब मुझे ये चीज ज्यादा गौर की मैंने कि हाँ भाई वो जो विंडो है वो मुझे ज्यादा हिप्नोटाइज करती है, एंड देन ऑफ कोर्स मैं फंस जाती हूँ। तो जितने इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, सेविंग से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से जो, तो हर एक चीजों को मैंने जाना और कि क्या है, उस चीज को बोलते हैं ट्रैप, साइकोलॉजिकल ट्रैप में मैं फंस गई। तो सबसे पहला मैं साइकोलॉजिकल ट्रैप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, उसको बोलते हैं एंकरिंग ट्रैप। शेयर मार्केट का एक खूबसूरत ट्रैप है जिसमें हमेशा लोग फंसते हैं, उस ट्रैप को बोलते हैं एंकरिंग ट्रैप। नाउ एंकरिंग ट्रैप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे व्हेन यू आर टू मच रिलाई ऑन मार्केट की साइकोलॉजी पर एंड यू आर ओवर रिलायंस ऑन व्हाट जो पीपल सोचते हैं, इतने सालों से सोचते आ रहे हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा ओवर रिलाय रहते हैं, हम उसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो सालों से चलती आ रही है, एंड मैं उसी के ऊपर ध्यान दूंगा।
So for example, आपको अगर बोला जाए कि बॉक्सिंग का मैच चल रहा है कहीं पे एंड आपको फाइटर के दोनों के बीच में डिसाइड आपको करने को बोला कि इसमें से कौन सा फाइटर जीतेगा, डिपेंड्स ऑन द स्टैटिस्टिक्स कि किसने पंचेस ज्यादा मारे हैं। आप क्या करोगे, आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा, आप पूछोगे कि लास्ट में सबसे ज्यादा फाइट किसने मारे हैं, तो मैं उसी के ऊपर बेट लगाऊंगा कि ये बंदा जीतने वाला है। ओके, नाउ यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि आपने चूज किया स्टैटिस्टिकली, बिकॉज यू आर ऑल्सो ओवर रिलायंस ऑन डिपेंडिंग ऑन दी स्टैटिस्टिक के ऊपर। नाउ होता ये भी है जब सामने वाला अपोजिट पर्सन है, हम उसको कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, अभी उसने उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता नहीं है। ओके, नाउ आप वो भी हो सकता है कि वो मैच में वो बंदा जीत के चला जाए, फर्स्ट राउंड में उसने नॉकआउट्स मारे और वो जीत के चला जाए। नाउ आप कहोगे अरे ये तो फैक्ट्स के ऊपर मैंने डिसाइड किया था, फिर भी मैं ये ट्रैप में कैसे फंस गया। ऐसा भी होता है कि कई कंपनीज में, शेयर मार्केट्स में हम पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के इंस्पायर हो जाते हैं एंड हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं उस चीज के ऊपर, हम ज्यादा रिलाय रहते हैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं और ये सोच के चलते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है नहीं एंड कंप्लीटली मैं फोकस करूंगा और मैं इसमें फंस जाता हूँ एंड मेरा कंप्लीटली डाउन हो जाता है। दो चीजें होती है। सबसे पहला होता है मैं फॉल्स अजम्पशन पे देखता हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है वो उसको मैं फॉल्सली अज्यूम करता हूँ। दूसरा होता है मैं चेस करता हूँ स्टॉक के ऊपर। तीसरी चीज 52 वीक्स का हाई एंड लो मैं नहीं देखता हूँ। जैसे कि स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे 52 वीक का हाई लो वो भी देखना चाहिए। नाउ इस सब का सॉल्यूशन क्या है, दैट यू आर टू मच रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लास्ट 5 years से लेके इसका सॉल्यूशन ये है दैट वी हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड। हमें इंफॉर्मेशन जहां कहां से आती है उस कंपनी की, हमें उस चीज के लिए ओपन माइंड रहना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछना चाहिए। दूसरी चीज, आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 4-5 साल से, उसकी ना एवरी टाइम इंफॉर्मेशन आती है। जब वो स्टॉक है ना आप वॉच लिस्ट में रखते हो, रिमेंबर जब आपके पास ऐप होता है वो वॉच लिस्ट का ऑप्शन होता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारा ध्यान रहता है शेयर मार्केट की विंडो के ऊपर एंड दैट स्टॉक्स के ऊपर, रादर दैन रिलाइंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन। वो छोटी सी भी इंफॉर्मेशन ना हमें बहुत कुछ बता देती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड the best way is to overcome from this trap is that we should aware of it। हमें वो information के बारे में aware होना चाहिए, तो awareness होना ही चाहिए बिकॉज क्योंकि ये मेरा हार्ड अर्न मनी है। और एक चीज है कि हमें फंडामेंटल्स देखने चाहिए। अगर फंडामेंटल्स का मतलब वही है कि इस कंपनी सीरियसली अर्न कर रही है नहीं कर रही है, वो देखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भी ध्यान, उसको भी पूछना चाहिए, उसको भी ब्रेन उसका, हम उसको भी पैसा दे रहे हैं राइट, वो अगर हमारा मनी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि हम उसको भी पैसा दे, तो उसको भी पूछना चाहिए कि भाई तू बता तो रहा है, खुद के कमीशन के लिए मत बता मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए बता। क्योंकि कई सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को मैंने देखा है कि वो अपने कमीशन को लेने के लिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स की एडवाइस एंड ऐसे स्टॉक्स हमें म्यूचुअल फंड्स बता देते जहाँ से उनको कंपनी कमीशन वगैरह देती है, रादर देन सीइंग कि क्या है एक्चुअली मार्केट का। तो ये एंकरिंग ट्रैप बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ एंकरिंग ट्रैप ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल मनी कंट्रोल जैसे, या फिर डिपेंड्स, ऐसे कोई होता है इंफॉर्मेशन, वहां पे मुझे वो बता देते 100 रुपीज का स्टॉक से 170 तक जाएगा। नाउ व्हाट वी ओनली सी, हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उसी चीज पे जाता है। 100 रुपीज का स्टॉक 170 पे जाता है। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी अपना रिटर्न्स क्या है। अगर मुझे 100 का स्टॉक 150 में मिला, 15 गया है, 15 रुपए का वो छोटा प्रॉफिट लेके निकल लो, मतलब 15 रुपए का एटलीस्ट स्टॉक जो प्रॉफिट है वो निकालो। 100 के शेयर चाहे तो वैसे ही रखो, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा राइट। हम ग्रीडी बहुत हो जाते हैं मार्केट की इस पे या फिर इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पे, और हमें लगता है अरे 170 जाएगा ना, तो 15 से लेके 170 हम कैलकुलेट करते, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ द स्टॉक, कैलकुलेट करके देखते हैं मुझे इतना 25-30 हजार मिल रहा है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दूंगा इसके ऊपर, मुझे वही देखना है। सो ये सब करते वक्त मुझे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज 5 साल से कंपनी अच्छी चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो आगे भी अच्छे खासे रिटर्न देगी। नो, दैट इज नॉट ट्रू। सो यस,
तो दिस इज अबाउट द एंकरिंग ट्रैक, कि मैं वो एंकर में फंस ना जाऊं. नाउ द सेकंड ट्रैप इज अबाउट sunk cost trap. sunk cost trap. sunk cost trap, ये ट्रैप, ये इस तरीके का ट्रैप है. दैट इज अ वेरी डेंजरस ट्रैप. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे ऐसा बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उस कंपनी में मेरा पैसा डाला है. ओके, कुछ टाइम बाद वो कंपनी का स्टॉक अच्छा चल रहा है, कुछ वक्त के लिए लेगा. नाउ मैंने उस कंपनी में डिसीजन नहीं लिया प्रॉफिट निकालने का. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, मैंने वैसा ही रहा और कुछ समय बाद वो कंपनी की वैल्यू नीचे आ गई, सडनली स्टॉक डाउन हो गया. तो नाउ मैं क्या डिसीजन लूंगा, अरे आगे जाके तो ये स्टॉक की वैल्यू ऊपर तो जाने वाली है, मुझे एक्सेप्शनल ग्रोथ मिलने वाला है ये स्टॉक में, वॉट एवर दैट ए अमाउंट ऑफ स्टॉक. तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज करने का जो सोचता हूँ और पैसा मैं उसमें डालता हूँ. तो मैं और एवरेज के चक्कर में मैं उसमें और पैसा डालूंगा और मुझे लगेगा अरे मुझे तो ये अच्छा खासा रिटर्न होगा. तो जहां से आपने ये स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट और जहां से लेके आपको अपने लॉस कवर करने हैं, इस चक्कर में आप और पैसा डालते हो तो और नीचे आ जाता है. नाउ आप कैसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास पैसा था, मैंने हार्ड अर्न मनी मेरा वहां पे इन्वेस्ट किया, मुझे वहां पे डिसीजन लेना चाहिए था कि मुझे इतना प्रॉफिट मिला है, मुझे निकलना चाहिए, ना कि वो नीचे आने के बाद मैं और रुकता हूँ और मेरा पैसा डालता हूँ. क्योंकि वो मोस्टली इन्वेस्टर की ऐसी मेंटालिटी रहती है कि 100 रुपए का स्टॉक्स है तो 50 वगैरह चला जाए तो मैं एवरेज करने के चक्कर में और स्टॉक लेता हूँ और के चक्कर में मैं पूरा जितना परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट मुझे उस स्टॉक में डालना चाहिए वो मैं नहीं डालता हूँ और इंस्टेड ऑफ द मैं बाकी के इन्वेस्टमेंट को भी मैं डिस्टर्ब करता हूँ. राइट. तो इस तरह से हम एक्चुअली फंस जाते हैं. उस ट्रैप को बोलते हैं संक कॉस्ट ट्रैप. नाउ इमोशनल कमिटमेंट या फिर बैड इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस की वजह से, तो हमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए कोई कंपनी के ऊपर. XYZ कोई भी कंपनी है, बहुत बड़ी बैंक है, बहुत अच्छे रिटर्न दे रही है, डिविडेंड भी मुझे जबरदस्त ले रही है, नो, बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियसली देखना चाहिए. देखिए कैसा होता है, मैं आपको बताती हूँ. BSE में, NSE में, BSE के तो 5000 स्टॉक्स हैं, NSE के 1600 स्टॉक्स हैं. तो हमें बाकी के स्टॉक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. सो डाइवर्सिफाइड इस तरह से पोर्टफोलियो करो अपना कि मुझे बाकी की कंपनीज भी रिटर्न देगी, वो मुझे एक ही कंपनी के रिटर्न हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं ना. एंड इट इज नॉट आवर फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ आवर इग्नोरेंस. हम इग्नोर ही कंप्लीटली करते, कोई भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने से पहले हम ज्यादा इग्नोर वर्क हो जाते हैं, इसी के लिए हम ध्यान नहीं देते एंड ठीक तरह से अपना नहीं कर पाते. इसमें थोड़ा 19-20 भी होगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% आपके डिसीजंस करेक्ट होंगे, नो, एब्सोल्युटली नॉट. 20% कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा, लेकिन वो 100 का 200% रॉन्ग डिसीजन मत करो. राइट. द थर्ड ट्रैप जो होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस ट्रैप. नाउ अगर आपको कहीं पे लगता है कि कंपनी का कुछ तो मेजर स्कैंडल हुआ है, कंपनी मार्केट मुझे हमेशा वार्निंग दे रहा है, रेड लाइन मुझे हमेशा दिख रही है, एंड मैं क्या करता हूँ, सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं उस फाइनेंशियल हेडलाइंस को पढ़ूंगा ही नहीं. तो दैट मीन्स आई एम फाइनेंशियली ब्लाइंड. मुझे पता है कि वो मार्केट चल रहा है, वो कंपनी नीचे आ रही है. जैसे कि येस बैंक का बबल आपको पता है, लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के लिए एंड देन द स्टॉक वेंट डाउन सो डाउन, इतना चला गया कि लोग कंप्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे उस कंपनी के ऊपर. जो ब्लाइंडनेस ट्रैप का बेसिक एग्जांपल है, दिस इज अबाउट दी अपना येस बैंक का है. नाउ अगेन मैं आपको और एक चीज बताती हूँ. 1990 में एक चीज हुई थी, UTI म्यूचुअल फंड्स आया था. वहां पे जब UTI म्यूचुअल फंड 1990 में आया था ना, तब उसने वो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एक मास्टर शेयर करके उसने ये लॉन्च किया था. अब मैं इनसाइडर में आपको एक थोड़ी सी चीज बताती हूँ, क्योंकि बिकॉज माय डैड बिलोंग्स टू दैट, ये जॉब करते थे, तो इसके लिए. तो 1990 में ये जो शेयर आया था, लोगों को उसने अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिए और बहुत अच्छा चला था वो स्टॉक. एंड उसके बाद एक दूसरा स्टॉक आया जिसको बोलते हैं कुछ मास्टर गेन करके आए. लोगों ने अपने पैसे इस तरह से डुबा दिए कि मतलब आपको पता है, वो पान वाले से लेके जो है ना, उसने भी वो मास्टर गेन में पैसे डाले थे. रिक्शा वाला से लेके पान वाले से लेके, क्योंकि कंपनी का जबरदस्त रिकॉर्ड था. इतना समथिंग अराउंड बताओ आपको, कुछ 4000 करोड़ का वगैरह कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसने कुछ किया था. तो
ऐसा भी होता है कि हम बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं उस कंपनी के ऊपर। ऑफ कोर्स वो कंपनी है, वो कौन चला रही है, कंपनी नहीं, लोग हमारे जैसे तो लोग चलाते हैं। तो ब्लाइंडली ऐसे कुछ किसी भी चीज के ऊपर हमेशा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि एक कंपनी मुझे 100% रिटर्न दे रही तो वो 1000% रिटर्न देगी नहीं, वो मुझे 1% रिटर्न तक ये करती है, इतना नीचे आता है वो रेशियो। तो स्टॉक्स कंपनी या फिर कुछ भी सिलेक्ट करते समय मैं अपने विड्रॉल्स पहले निकालूं, मैं अपना प्रॉफिट पहले निकालूं, परफॉर्मेंस में सबसे पहले देखूं कि मुझे क्या है दे रही है वो कंपनी, सबसे पहले मैं वो चीज देखूं। तो ऐसे तरह के ट्रैप्स में कभी फंसना नहीं चाहिए। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ ट्रैप, इज दैट सुपीरियरिटी ट्रैप। सुपीरियरिटी ट्रैप का ये मतलब होता है कि मुझे सब कुछ आता है, मार्केट से भी ज्यादा मुझे समझता है। नाउ पीपल, दिस इज अगेन अ वेरी डेंजरस ट्रैप, जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो रहते हैं हमारे जैसे, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैं भले एजुकेटेड हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है इस सब चीज का, तो आई एम वेरी वेल एजुकेटेड, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मार्केट से भी मुझे ज्यादा पता है, एंड जो भी है मैं एक्सपर्ट एंड एनालिसिस की कोई राय नहीं लूंगा, मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि मुझे क्या करना है मेरे इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो यही है, ये लोग हमेशा ऐसे टाइप का रहते हैं कि जो हमेशा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कभी भी नहीं पूछते, एंड देन दे फॉल इनटू दैट सुपीरियरिटी ट्रैप में हमेशा फंस जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज क्या होता है पता है, हमारी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड समटाइम्स रिपीटेडली हम वही मिस्टेक्स करते हैं। हिट ऑफ द मोमेंट में ऐसे कुछ डिसीजन लेके रहते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमें बहुत टेम्पटेशन होता है कुछ भी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते समय। तो हमें ध्यान देना अगेन जरूर, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम हमारे थॉट्स पे जितना ध्यान देंगे उतना ज्यादा पता होगा। तो इट्स कम्प्लीटली ओके। वो ना एक बबल इतना क्रिएट करके रखा है ना मार्केट की तरफ, जैसे 9 बजे खुलता है ना, उसके पहले ही लोग डिसाइड कर लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट डाल के रखते हैं, एंड देन कम्प्लीटली उल्टा रिवर्स सिनेरियो हो जाता है। 9:15 बजे मार्केट शुरू होता है, उसके वो 15 मिनट में लोग डिसाइड शुरू करते हैं, ऊपर जाता है नीचे जाता है, सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो ऐसी तरीके की चीजें हमेशा होती है। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट शेयर मार्केट बट अबाउट आवर अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो पता कर पाया ही कि क्या है करके। देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू, क्या हम जो डिसीजन लेते हैं ना, दैट इज हेवीली इन्फ्लुएंस ऑन अस। अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगी शेयर मार्केट में या फिर कोई भी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट्स का रूल है कि हम हेवीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे नेबर से, हमारे रिलेटिव से। सो हमें क्या लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे रिलेटिव्स को 80% रिटर्न मिले हैं, तो ये स्ट्रैटेजी मैं भी ले लेती हूँ, मुझे भी उसमें रिटर्न्स मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में। ओके, नाउ जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हो ना, तब आपका रिलेटिव्स, आपके दोस्त आपको कभी उसकी बाइंग प्राइस नहीं बताएंगे, राइट? आपको कभी वो शेयर करते हैं आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, दे डेफिनेटली शेयर, बट दे विल नॉट शेयर देयर बैंक स्टेटमेंट्स, या फिर दे वोंट शेयर देयर स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स, कभी नहीं शेयर करते। दे विल ओनली टेल यू कि भाई तू ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर, मुझे 80% रिटर्न मिले। हम ध्यान नहीं देते और हमारा ध्यान जाता है वो फिगर्स के ऊपर। 80%, वाओ 80% मुझे मिले हैं रिटर्न। तो यस, तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए हमें बैकफायर करती है, बाउंस बैक करती है, एंड ग्रीडी बहुत हो जाते हैं, अरे 80% उसको मिले तो मुझे भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के रूल्स में कभी नहीं फंसने। नाउ यू हैव टू टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब है यू हैव टू टेक अ प्रॉपर रिसर्च that there are n number of things like value insider, mutual fund advisor। वहाँ पे जहाँ हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, ये जो म्यूचुअल फंड के जो क्या बोलते हैं फंड मैनेजर्स रहते हैं, वो ना हमेशा फैक्ट शीट डिस्क्लोज करते हैं। तो फैक्ट शीट जब वो डिस्क्लोज करते हैं, वहाँ पे ना वो परसेंटेज देते हैं, मैं आपको बताऊँ, उसमें वो परसेंटेज रहता है कितने % इंडस्ट्री में मैंने इन्वेस्ट किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे और एक चीज डिस्क्लोज करते हैं कि रिलायंस या फिर वॉट एवर दैट अमाउंट ऑफ स्टॉक्स भी वो डिस्क्लोज करते हैं वहाँ पे। हमें जब हम कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए कौन से फंड मैनेजर में, कौन से इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्ट किया है, और वो कौन से स्टॉक में वो बेसिकली बोलता है। और ये इन्फॉर्मेशन आती है दलाल स्ट्रीट में, आती है म्यूचुअल फंड इनसाइड मैगजीन्स में, आती है वैल्यू इन्वेस्टर्स में आती है।
तो यहाँ पे बिकॉज वी हैव टू पुट, हमें हमारा इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। तीसरी चीज, ऐसी कोई चीजों में इन्वेस्टमेंट मत करो जिसके बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी पता ना हो। सो फार्मा इंडस्ट्री का मैंने शेयर लिया है एंड मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे हमेशा पता होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री कौन सी है, वो इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने परसेंटेज का रिटर्न लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में। एंड ये सारी चीजें डिस्क्लोज होती है, फैक्ट शीट्स में आप जाओगे ना तो वहाँ पे पूरी की पूरी चीजें डिस्क्लोज वो लोग करते हैं। एंड 1-2-3 महीने बाद उनका वो चेंजेस भी होता है ना, तो आपको ना, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको वो स्टेटमेंट्स भी आता है उनका। तो वो एक चीज पे थोड़ा ध्यान रखो, हाईलाइट करके लोग को एक बोल्ड मार्क करके रखो कि हाँ भाई ये इसने ये डिसीजन लिए हैं, ये लिए है या नहीं लिए। द सेकेंड थिंग इज अबाउट मार्केट को ट्राई मत करो, राइट? ट्राई करने जाओगे ना तो ऐसा होगा कि चलो मैं आज कुछ स्टॉक लेके देख रहा हूँ और मैं उसको ट्राई करने जा रहा हूँ बिना किसी प्लानिंग के। मैं ऐसे ही मेरे 10-15 हज़ार उसमें डाल रहा हूँ और मुझे देखना है भाई क्या होता है करके। एंड खुद बिना रिसर्च के तो बिल्कुल भी नहीं जाना है हमें। बोलते हैं ना, वो मुझे देखना है इसलिए नहीं, मुझे जानना है इसलिए। पहले डीपली पूरे उस चीज के बारे में, उस स्टॉक के बारे में 15 दिन 20 दिन वॉच करो, सिर्फ वॉच लिस्ट में लेके रखो उस स्टॉक्स को कि एक महीना भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पता हो आपको इट्स लाइक स्टॉक ऊपर जाएगा ना तो वो नीचे आता ही है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं कि आज तुम्हारा 50 रुपीज का है तो सडनली वो राइज होता है। दैट इज अगेन हिप्नोटाइज करता है वो आपको स्टॉक। सडनली एक 10-15 दिन में वो ना 50 का 80 जाता है। हम उस वक्त सोचा अरे मैंने इन्वेस्ट किया होता 50 में तो आज मेरे को इतने रिटर्न। नो, 80 वाला स्टॉक नीचे आएगा, डेफिनेटली आएगा। वो ऊपर नीचे होता है इसलिए उसको मार्केट को। सो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ऑल्सो हमें भी देखनी चाहिए कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अनदर गोल्डन रूल इज दैट इमोशंस को कभी मत लाना, जजमेंट कभी मत करना, इमोशंस को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। मैं जब इन्वेस्टमेंट करूंगा स्टॉक मार्केट में उसके ऊपर नहीं। दूसरी बात, मुझे बचपन से ऐसा है कि हम बोलते हैं ना कि मम्मी पापा मेरे इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो मुझे HDFC कंपनी बहुत अच्छी लगती है। नो, मेरा कुछ रिश्तेदारी नहीं है उस किसी स्टॉक्स के साथ। ऐसा है क्या कि हमारे कुछ रिश्तेदार है उसके साथ, कंपनी के साथ जुड़े हुए, दैट इज द रीजन वी आर इन्वेस्टमेंट। नो, वी आर इन्वेस्टमेंट फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो मेरे भले रिश्तेदार भी उस कंपनी में हो ना हो तो भी मुझे देखना चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट का इसके ऊपर क्या असर होता है। इसलिए मैंने कल सबको वो ये दिया था कि आपको देखना चाहिए आपका आजू बाजू का इन्वायरमेंट कितना मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। एंड दैट टू ऑल्सो यू ऑल्सो कैटेगराइज कि आपके फ्रेंड्स आपको ग्रो करते हैं कि नहीं, आपका रिश्तेदार आपको ग्रो करते हैं कि नहीं, कौन आपको ग्रो करने के लिए आपको ज्यादा मदद करता है, जिसके साथ आप टाइम बिताते हो वो मुझे ग्रो करता है कि नहीं। एंड दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग एक्सरसाइज, हम ध्यान ही नहीं देते ये चीज के ऊपर। सो यस, ऑल्सो यू हैव टू क्रिएट अ ब्रॉड पोर्टफोलियो। वो पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा करके दो। तो ऐसा है कि सबको अभी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट में करता हूँ, मुझे 80-90% के इन्वेस्टमेंट बैंक से ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। नो, आई हैव टू डू इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे कि मुझे अपना पोर्टफोलियो बहुत ब्रॉड करना है। डाइवर्सिफिकेशन हर जगह पे चाहिए मुझे, हर किसी चीज में मैं डाइवर्सिफिकेशन करूंगा। मैं देखूंगा इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कौन से है, क्या ग्रोथ मुझे मिलता है, क्या डिविडेंड वाले स्टॉक्स में भी थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करके रखो। देन IT सेक्टर्स में थोड़े करके रखो, जो सेक्टर अच्छा चल रहा है वहां पे भी एक आध दूसरा स्टॉक छोटा अमाउंट का लो। एक ग्रुप ऑफ कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं सारे अच्छे नहीं है, कुछ कुछ जो अच्छे हैं तो उस चीज के ऊपर ध्यान रखो। लाइक HDFC वाला एक अच्छा है तो वैसा वाला है, बिकॉज आई ऑल्सो ट्रस्ट HDFC के ऊपर, तो वो एक स्टॉक मेरी लिस्ट में हमेशा रहता है। तो एट द सेम टाइम मुझे पता होना चाहिए मेरा स्टॉक। ब्रॉडन पोर्टफोलियो का मतलब ये भी होता है कि मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में भी डालूंगा, सबसे कंजर्वेटिव कोई भी कम से कम वाला रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है उसमें भी मैं डाल के देखूंगा। मैं गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा अमाउंट का परसेंटेज रखो। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू मॉनिटर रिलीजियसली, रिगरसली मॉनिटर करना चाहिए। आई एम इन टू से दैट ना आप खुद का आपका एटलीस्ट डेली 15-20 मिनट इसमें तो दो ही दो। रोज देखो 15-20 मिनट क्या हो रहा है,
इवन अगर आप हेवीली शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हो, देन आफ्टर मार्केट एंड ऑल्सो वॉच दैट शेयर, वो शेयर को भी अच्छे से देखो कि आज की दिन भर की उसकी मूवमेंट्स कैसी है, बिकॉज इट्स आर हार्ड अर्न मनी एंड वी हैव टू स्पेंड, लाइक तो हमें टाइम ही देना है उसको, तो देखो क्योंकि उसके ऊपर हमारे नेक्स्ट डे के डिसीजन डिपेंड रहते हैं। एंड अभी तो देखा जाए तो मार्केट के तो बहुत सारे ऊपर नीचे एंड देन बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं काफी चीजों में। तो यस, तो दीज आर बेसिकली रूल्स जो मैंने शेयर किया आपके साथ की। सो यस, कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस इसके बाद कैसा है? एनालिसिस के टूल्स, ओके ठीक है, मैं शेयर करती। वैल्यू इन्वेस्टर्स है ना सर, म्यूचुअल फंड इनसाइडर करके एक मैगजीन आता है। Can you repeat again? म्यूचुअल फंड इनसाइडर करके एक मैगजीन आता है, वहाँ पे रेटिंग्स बहुत सही मिलती है, मंथली आता है वो मैगजीन। वो एक वैल्यू रिसर्च करके एक मैगजीन आता है, दलाल स्ट्रीट करके आता है। एंड ऐसा नहीं है उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, अगेन आई एम सेइंग वो पहले 15 दिन वॉच लिस्ट में रखो। मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ आपको, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वॉच लिस्ट में रखो, उसको वॉच करो, 1 महीना कंप्लीटली वॉच करो, और आपको ऐसा लगेगा अपॉर्चुनिटी खोई नहीं, आपने अपॉर्चुनिटी नहीं खोई है कोई भी। आपको लगेगा वो स्टॉक 50 का 80 हो गया, नो, आपने अपॉर्चुनिटी नहीं खोई, वो स्टॉक नीचे आएगा, डेफिनेटली आएगा, 80 का 60 में तो आएगा ही आएगा। और गिरते हैं स्टॉक उस तरह से। HDFC की आप वोलेटिलिटी देखोगे ना रोज की, तो कम से कम 50-60 रुपया 100 रुपया ऊपर जाता है, उतना ही वो नीचे भी आता है। सो यस, देर आर फ्यू स्टॉक्स जो जाते हैं ऊपर उतने ही नीचे गिरते हैं। TCS ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स गिव्स यू अ गुड रेट ऑफ रिटर्न, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। सो यस, Being a banker, I would have seen it in this way. Basically, investment plans that I make is like this: that short term, that somebody would require for say 1 year, 2 year, 3 year kind of a requirement, a medium term and a long term. Then again, depending on the person's age, I would be suggesting investments for people as to which are the buckets they can put in their monies. That again needs to be diverse. It could be short term, medium term, or long term. Everything needs to be diverse because you cannot put all your eggs in one basket. right ma'am, You don't really know where you'll go wrong with what. right. So it could be investing in gold, which you can encash. It could be investments even in your FDs or in some debt funds where you know you're going to get sure short returns. And like what you said, it could be like you know your what is it, post office and all these things which give you good returns, or even certain other things that the banks also offer, or your company deposits, and of course mutual funds and shares. So it depends on what is your risk appetite and how you're able to cope up with the volatile market. Based on that, I think one has to consider investments. क्या कहते हैं? यस मैम, बिल्कुल उज्ज्वला जी, ऐसा ही है। तो वही है, रिस्क आपकी खुद की देखो, आपके दोस्त का वो जो है ना करियर या फिर उसका पैसा डालने का ये चीज जैसा होता है ना, वो उसके हिसाब से डालता है। हम बोलते हैं कि अरे उसने, एग्जाम्पल दे रही हूँ जिस तौर पे कि कोई भी कंपनी के, इंडिया बुल्स हो या फिर कुछ भी हो, IT कंपनी TCS एंड ऑल दैट, उसके 100 शेयर लिए तो आपको भी 100 नहीं लेने, उसको उसका रिटर्न जो है उसको मिलने दो। हम 50 लेंगे, 5 लेंगे, व्हाटएवर। तो वो जितना अमाउंट का लॉट लेता है उतना नहीं लेना चाहिए, हमें हमारा खुद का रिस्क देखना चाहिए कि मुझे कितना रिटर्न। ऑल्सो एट द सेम टाइम ना ऐसा है कि कोई बोलता है इसके लिए मत स्टॉक के ऊपर ध्यान रखो। मतलब मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड, मुझे रिलेटिव्स बोलते हैं कि भाई लेना तू ये लॉट, मेरे को 80,000, 90,000, 1 लाख मिले, तो नहीं, वो भी मत करो, ध्यान तो बिल्कुल ही मत उस चीज के ऊपर। So how to escape the operator in the market?
How to escape the operators? Big fish. हाँ यस नीरज जी बिल्कुल वो सब कुछ मेरा तो वही मानना है तो हम ही से शुरुआत होती है हम ही पे सब खत्म होता है सो खुद की रिस्क पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही ट्रेड करो इन्वेस्टमेंट करो जैसा है ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर कैन नॉट डू द ट्रेडिंग ये बिग फिश का ही काम है और अपने को करना भी नहीं चाहिए इट इज बेटर टू अवॉइड द इंटरडे ट्रेडिंग दिस इज माय एक्सपीरियंस बिकॉज वी कैनॉट we cannot read their mind what operators do No, you don't. I don't think you really need to do that. Like when I started, I just decided that I'm going to keep 50,000 aside only for doing my trading. And then I did the study of the market. I would invest small. And I knew that every month this is kind of a return that I'm getting. So once it was about 6 months, that is when I decided to go big time. Yeah, you can do that. We need to be in constant touch with the market, the study, analysis, and only then we can know. Yeah, that I think you need to spend about an hour or so every day, half an hour, 1 hour. You would require to spend to make a study. Like without doing a study, obviously we are not going to get returns. But then trust me, I was making a return which was enough for me to take care of my household expenses just with my investments. That was alongside my other working. Yeah, market, so it is possible. Yes, it is possible. Market gives us opportunity. If we do the studies, analysis, and we are watchful, one can make money. Like that. But if we cannot do this groundwork and homework, it's better to avoid the intraday market, right? Achha, I want to share with everyone ki happy. I will post the IPO. Today there was one IPO. कल उसका last date है. Happiest minds. So please, happiest minds. So everybody should inquire about it. और एक IPO और है जो which I will share tomorrow. So everybody should inquire about it also. Happy is good. And one more is coming tomorrow. I will share tomorrow. Happy mind is good. Second one is also fine. I'm running one stock market group as well since last 6 years. तो वहाँ पर बहुत सारे analysts वगैरह भी है. So in case if you all want, na, you all can be a part of that group also. So I am the only admin. I only formed that group like 6 years ago. So that time मेरा investment बहुत ज़्यादा stock market में होता था. You all can be a part of the group if you all want. You can share the link. We'll join. We'll get a lot of insights. उसमें regular IPO है, फिर क्या है, market news क्या है, so all that you can keep a track. But do your own research, before you. किसी ने बोला है तो नहीं करना है. Absolutely, that's what. आप आपका खुद का research करो और बाद में पैसा डालो. आपका hard earned money. Simple. Everybody has got a different risk appetite, मुझे कोई स्टॉक फेवर किया जरूरी नहीं कि आपको भी करेगा. आप जब भी करने जाओ आप बोलिए. I am too excited to share कि आज मैंने ये पन्ना and emerald and that पुखराज ये 2 rings लिए हैं for money. This is for money. अरे वाह. So this happened during this training only. Oh wow. wow. You are getting breakthroughs पे breakthroughs. सही है एकदम. Very good. Yes. Today also I had. Today also one of my client credited 17,500 in my account. School account. Very nice. So touch wood, but yesterday did the exercise with 1 crore. I am going to Dubai this 18th. So I am looking forward कि मेरे वहाँ building में 400 families are there. Okay. So I want to establish myself there in 3-4 months. And my husband gets a super duper good job. I want to seek everybody's blessing. He's looking for a better option. And I bless everyone कि मतलब 100 times, 200, 1,000 times सबका खूब आए. And if I can be a part in anything, nothing like that, as a team, it would be an opportunity for me. I bless everyone. Thank you. Wish you the same. आपको मिलेगा तो मेरा ऑरा इंक्रीज होगा, मेरा गुड लक इंक्रीज होगा, प्रॉस्पेरिटी का. Absolutely. Awesome thinking. Wow. Best wishes from all of us.
Yes. Blessings actually Yeah, plays all a the very best. important role in anyone's life, True. to be honest. आपको और कुछ नहीं रहेगा ना, सिर्फ वो रहेगा ना, आपका लाइफ बहुत अच्छे से जाएगा. आपको पीस भी मिलेगा और पैसा तो आएगा अपने आप से, है ना? तो बोलते हैं दुआ और बददुआ दोनों काम करती है. बहुत अच्छे से काम What you करती give है. is what you get. Yeah. So what you give, you get many times more. It's nature's philosophy. Nature multiplies whatever we give. जितना दे सकते हो दो. Giver and the taker mindset. So we have the mentors as givers, we are takers. Now we have to give it. Should always be a giver. Yeah. Until unless you're only a taker, the universe will never help you to grow. That is my personal experience. I have seen people like who are only like who only take, but then one fine day the universe also takes everything from you. You need to be a giver if you really want to multiply your abundance, prosperity, or whatever it is. They create blockages, we get stuck up. Correct. We are only एक टास्क और है जो आई वुड लाइक टू शेयर विथ माय टीममेट्स कि जैसे बहुत सुंदर आपको कोई पेड़ लग रहा है, यू नो, द ट्री इज अट्रैक्टिंग यू. तो व्हाट आई डू, यू नो, इज समबडी टोल्ड मी, आई हैड अटेंडेड समथिंग, तो आप उसके ब्रांचेस को पकड़ लो और आप फील करो कि जैसे करंट जाता है तो आप उसके सारे ब्रांचेस उसके रूट से आप कनेक्ट हो गए, एंड देन यू इन्वोक कि जितना उसमें पत्ती है, द लीव्स, यू नो, उतना मेरे उसमें लव हो, व्हाटएवर यू आर सीकिंग, मनी हो, पीस हो, मतलब एक फोकस हो. बहुत सारी चीजें मैंने मांग के नहीं देखी. सो थिंक ऑफ वन थिंग स्पेसिफिकली एंड जस्ट टॉक टू दैट ट्री and you know, just be connected like a meditation. So I want everybody to just experiment it. It is true. It is called premeditation. Even when you feel very low and disturbed, you can just go and hug a tree and you can talk to the tree all the disturbances that you have. You can actually leave it onto the tree and then you bless the tree so that the tree doesn't live with the negativity that you have given it. And then you can later on go back to the tree and communicate with it as if it's a friend, and you can do this meditation where you ask for all these things. It works. Okay. Yes. Very We had one nice piece of information. Yes. Thank you very much, both of We you. had one scientist, C.V. Bose, if we have heard. We Just have a talked about. Yashashree, your session is over. Yeah, my session is ठीक है, over. तो I will stop the recording then. हाँ, recording stop. कैसा लगा आज का सेशन? Awesome. बहुत इंफॉर्मेटिव था और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने का भी मन कर रहा है. Lot of things we've learned. So thank you very much. It was a very fruitful session. Thank you, Yashish. थोड़ा सा I घुमा know. भी दिया सेशन, कौन सी पर्सनालिटी है. आपको कौन सा पर्सनालिटी बनना